Very good morning, everyone. So, today we will discuss dynamic memory allocation in C language. So, what exactly is dynamic memory allocation? Dynamic memory allocation is basically allocating or deallocating the memory at runtime instead of compile time in C. So, what you guys need to consider is C is basically a compiler based language, and everything that has to be included in a program must be declared at the compile time. But if you think that the reserved space is more than your requirement and it is getting wasted, but we cannot deallocate the space at runtime, and even if the reserved space is less than your requirement, and then you realize, oh, I need to allocate more bits to it, but you cannot increase the space at runtime. So, for this very purpose, like allocating or deallocating the memory at runtime, we are doing dynamic memory allocation in C. Okay, so this basically adds more flexibility in your C program. So what you guys need to understand is the operating system is basically managing your memory, and it has created a free storage space which is known as heap. And C also provides you four basic functions for dynamic memory locations, and these functions are malloc, calloc, realloc, and free. So we'll discuss all these functions one by one. So first one, malloc function. Malloc function simply means memory allocator. Okay, तो ये memory allocator exactly करेगा क्या? It basically reserves a block of memory, okay, for of specified number of bytes. Means you have to specify the total number of bytes that needs to be allocated at any given instant, and it will reserve that memory for you. So ये करेगा क्या? Return, it basically returns a pointer of void which can be casted into pointers of any form. So this malloc function basically returns a pointer of void type, but we can cast it into any pointer that we choose. So this is basically the format of a malloc function. So what we do is from this you can know that uh, here is your malloc function, and it is using only one parameter. वो सिर्फ एक parameter use करेगा, which is size, that the total number of bytes that you need to reserve in your memory. तो malloc function input क्या लेगा? Total number of bytes that need to be reserved in memory. और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? We are returning an integer kind of pointer, and we are assigning that to some variable name as ptr. So we'll take an example and see exactly how it works. तो देखिए, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने क्या करा है, मैंने कुछ सिंपल वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं इंटीजर टाइप के. n एक वेरिएबल लिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, i मैंने लिया है लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए, और मैंने एक पॉइंटर लिया है इंटीजर टाइप का ptr नाम से, और मैंने एक और वेरिएबल लिया है सम. तो ये सम को मैंने इनिशियलाइज भी करा है 0 पे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज वी आर बेसिकली एंटरिंग एलिमेंट्स एट रन टाइम, और उसके बाद उन सारे एलिमेंट्स को ऐड करके हम उसको आउटपुट दे रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर. सो इनिशियली हमने यूजर से मांगा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि आप कितने एलिमेंट्स एंटर करना चाहते हो, और यूजर ने वैल्यू उसके लिए दी, और जो भी वैल्यू उसने दी वो हमने स्कैन करी. हमने चेक करा कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और हमने उसको एन में स्टोर करवा दिया. फिर हमने क्या करा? फिर हमने अपना मैलॉक फंक्शन यूज करा, और हमने रिजर्व करी नंबर ऑफ बाइट्स. कितनी? n. मतलब यूजर ने लेट से एंटर करा था यहाँ पे 4, तो 4 इनटू, ठीक है. अब ये n क्या था? ये हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल था. तो इंटीजर टाइप के लिए तो हमने कैलकुलेट करा साइज ऑफ फंक्शन के थ्रू, साइज ऑफ इंट. तो अगर आपका लैपटॉप जो है वो 2 बाइट्स रिजर्व कर रहा है या 4 बाइट्स रिजर्व कर रहा है, तो साइज ऑफ फंक्शन क्या करता है? ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ बाइट्स रिजर्व्ड बाय एनी पर्टिकुलर थिंग. तो यहाँ पे इनपुट क्या था? इंटीजर. तो अगर आपका लैपटॉप इंटीजर के लिए 2 बाइट्स ले रहा है, तो साइज ऑफ इंट आपको रिटर्न करेगा वैल्यू 2. अगर 4 ले रहा है तो वो रिटर्न करेगा 4. तो लेट्स से कि अगर वो आपको 2 बाइट्स रिटर्न कर रहा है, सो n इंटू टू, एन की वैल्यू थी 4, सो 4 इंटू टू, 8 बाइट्स आपकी मेमोरी के अंदर एलोकेट हो जाएंगी.
ठीक है जी। और वो हम किसको असाइन कर देंगे, वो बेस एड्रेस ptr नाम के पॉइंटर को। अब ये ptr किस टाइप का पॉइंटर था, इंटीजर टाइप का, इसी वजह से इसको मैंने कन्वर्ट करा है इंटीजर टाइप के पॉइंटर में ना। फिर मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग करी और मैंने चेक करा कि क्या ptr को कोई वैल्यू असाइन हुई या नहीं हुई। अगर उसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई मैलॉक के थ्रू तो उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी और ptr की वैल्यू रहेगी नल। तो अगर ऐसा है तो हमने यूजर को एरर मैसेज दिया और हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ptr को वैल्यू दी गई है कोई ना कोई, तो उस केस में हमने क्या करा, हमने यूजर को कहा कि एंटर एलिमेंट्स, और हमने एक फॉर लूप चलाई एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए। ओके, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से। इनिशियली आई की वैल्यू क्या ली है हमने, 0, और हमारे पास n की वैल्यू थी 4। तो 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हमारा लूप में आया। तो यूजर से हमने वैल्यू स्कैनफ के थ्रू ली, किस टाइप की वैल्यू आ रही है, %d, दैट मीन्स इंटीजर टाइप की वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू हमारे पास आई और उसको हम कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं, ptr प्लस आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। सो ptr प्लस 0, ptr में क्या था, बेस एड्रेस था जो हमने स्पेस रिजर्व करा था, मतलब हमने 8 बाइट्स malloc फंक्शन के थ्रू ली थी और उसकी जो पहली बाइट का एड्रेस था वो था हमारे ptr के पास। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज नहीं करा, क्योंकि ptr के अंदर एड्रेस आ रहा है फर्स्ट बाइट का। सो ptr प्लस 0 मीन्स ptr, तो जो भी पहली वैल्यू आई इंटीजर टाइप की उसको वो कहाँ स्टोर करा रहा है, फर्स्ट बाइट के अंदर। अब क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है इसलिए वो आपकी 2 बाइट्स में एक्सटेंड हो जाएगी, तो फर्स्ट और सेकंड बाइट के अंदर वो वैल्यू हमारी स्टोर हो रही है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सम की पिछली वैल्यू के साथ इस वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, वैल्यू एट ऑपरेटर यूज करा और उस एड्रेस से वैल्यू ली। तो उस पे वैल्यू क्या थी, लेट्स से कि हमने 12 एंटर करा था तो 12, और सम की इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, तो 0 प्लस 12, 12 कैलकुलेट हुआ और किसको असाइन हो गया, सम को। तो ये था आपकी एक इटरेशन लूप की। उसके बाद आपका आई इंक्रीमेंट हुआ बाय 1। अब आई की वैल्यू हो गई 1, 1 इज स्टिल लेस देन 4, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। तो हम दोबारा हमारे लूप में आए, हमने दोबारा स्कैन करा, हमने अपना स्कैन करके इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर से ली और कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं अब, ptr प्लस आई, लेकिन अब आई की वैल्यू क्या है 1, तो ptr प्लस 1 वहाँ पे हम स्टोर करा रहे हैं। अब क्योंकि ये पॉइंटर आपका इंटीजर टाइप का था, तो जब हम उसके अंदर एक वैल्यू से ऐड उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो मतलब क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो एक की जगह 2 वैल्यू से इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि आपका इंटीजर 2 बाइट्स ले रहा है मेमोरी में। तो वो 1 प्लस 2 मतलब आपकी जो थर्ड बाइट है वहां पे स्टोर करवाएगा। और क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो 2 बाइट्स में फैलेगी, तो थर्ड और फोर्थ 2 बाइट्स के अंदर आपकी नेक्स्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो लेट्स से अगर यूजर ने एंटर करा था 23, तो 23 हमारे पास उस एड्रेस पे वैल्यू आ जाएगी। और फिर हम क्या कर रहे हैं, उस एड्रेस की वैल्यू ले रहे हैं, सम की पिछली वैल्यू में ऐड कर रहे हैं। सो 23 प्लस 12 इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं और वापस से हम स्टोर करा रहे हैं सम के अंदर ही। तो यहाँ पे हमारे पास अब आ गया 35। फिर हमने आई को इंक्रीमेंट करा बाय 1, अब आई की वैल्यू हो गई 2, 2 इज स्टिल लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। दोबारा हमने स्कैन करके वैल्यू ली इंटीजर टाइप की, कहाँ पे अब स्टोर करा रहे हैं, ptr प्लस 2। अब क्योंकि इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो प्लस 2 का मतलब कि 4, ठीक है जी। तो क्योंकि वो 2 से आपका 2 बाइट्स ले रहा है मेमोरी में, तो इसलिए ptr प्लस 4। तो ptr के अंदर फर्स्ट बाइट का एड्रेस था, उसमें 4 उसने ऐड करे तो वो फिफ्थ बाइट पे चला गया, और फिफ्थ और सिक्स्थ बाइट पे उसने नेक्स्ट वैल्यू स्टोर कराई जो कि लेट्स से यूजर ने एंटर करी थी 15, और ये वैल्यू उसने पिछली वैल्यू के साथ ऐड करी और वापस से स्टोर करवा दी सम में ही। तो पिछली वैल्यू थी 35, 35 प्लस 15, 50, 50 वैल्यू उसने स्टोर करा दी सम में। फिर आपका नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई बाय 1, 3, 3 स्टिल लेस देन 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है। दोबारा से हमने वैल्यू ली यूजर से, वैल्यू होनी चाहिए इंटीजर टाइप की, कहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, ptr प्लस आई। अब आई की वैल्यू है 3, ठीक है, तो 1 प्लस 6, 3 की जगह 3 के डबल से उसमें इंक्रीमेंट होगा, तो 1 प्लस 6 मानेगी सेवंथ बाइट पे,
आपकी वैल्यू स्टोर रहेगा 7th और 8th बाइट्स पे, कौन सी, जो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने ली। तो लेट्स से हमने ली यहाँ पे एंटर करी है 78, सो 50 प्लस 78 उनको सबको ऐड करेगा और वापस से स्टोर करवा देगा सम में। फिर आपका आई इंक्रीमेंट होगा बाय 1, आई की वैल्यू अब हो गई है 4, तो कंडीशन अब मेरी हो गई फॉल्स, बिकॉज 4 इज नॉट लेस देन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम सम की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। सो 50 प्लस 78 था 128, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 128। ओके, तो आप ये प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेंज करके देख सकते हैं, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे आपका मैलॉक फंक्शन जो है वो वैल्यू ले रहा है। और फाइनली देखिए हमने एक और फंक्शन यूज़ किया जिसका नाम है फ्री। फ्री फंक्शन क्या करेगा कि जो भी उस पॉइंटर को नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेटेड हैं, जो भी मेमोरी एलोकेटेड है, उन सबको फ्री कर देगा और वो वापस से एलोकेट हो जाएंगे किसको, आपके हीप को। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सेकेंड फंक्शन पे आते हैं। सेकेंड फंक्शन इज कैलॉक। सो कैलॉक और मैलॉक में दो ही डिफरेंस हैं जो आपको समझने हैं, इनकी वर्किंग नियरली सेम है, सिर्फ दो डिफरेंस है। पहला तो ये कि मैलॉक जो था वो सिर्फ एक आर्गुमेंट ले रहा था, चेक करें, मैलॉक जो है वो सिर्फ एक आर्गुमेंट ले रहा है कि टोटल साइज कितना है, जबकि कैलॉक जो है वो दो आर्गुमेंट्स लेगा, एक टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, दूसरा एक वेरिएबल का साइज कितना है। सेकेंड डिफरेंस, कैलॉग जो है वो सारे एलिमेंट्स को अगर आप उनको कोई वैल्यू नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो सबको इनिशियलाइज कर देगा जीरो वैल्यू के लिए, जबकि मैलॉक जो था कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा था, अपने आप उसमें गार्बेज वैल्यू आएंगी अगर हम उनमें कोई भी वैल्यू नहीं दें और डायरेक्टली प्रिंट करवाएं तो। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल मैंने लिया है, सिर्फ मैलॉक की जगह कैलॉग फंक्शन यूज करा है। और क्योंकि मैंने कैलॉग फंक्शन यूज करा है तो आप चेक करिए, जो जहां हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, पीटीआर को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो एक पैरामीटर की जगह मैं यहाँ पे दो पैरामीटर दे रहा हूँ। एक तो n विच इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और दूसरा क्योंकि इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं तो उसका साइज, मतलब साइज ऑफ इंटीजर क्या रिटर्न करेगा आपको 2। तो इस केस में लेट्स से कि हमने 5 एलिमेंट्स यूजर ने डाले थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में n की वैल्यू 5 डाली थी, तो 5 और साइज ऑफ इंटीजर है 2, तो इसलिए 10 बाइट्स आपकी मेमोरी में एलोकेट हो जाएंगी। ठीक है, और बेस एड्रेस किसको प्रोवाइड हो जाएगा, पीटीआर नाम के पॉइंटर को। तो ये बिल्कुल सिमिलर फंक्शन है जैसे हमने कैलॉक में करा था, बस यहाँ पे 4 की जगह हमने 5 एलिमेंट्स लिए हैं और हम उन सब का सम जो है वो करके यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो आप इसको रन करके देख सकते हैं, आई होप कि आपका ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं, रीअलॉग। लेट्स से कि मैंने मैलॉक या कैलॉक के थ्रू एक बार मेमोरी असाइन कर दी और फिर मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे थोड़ी ज़्यादा मेमोरी देनी चाहिए थी या मुझे मेमोरी कम करनी चाहिए थी, तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं हमारा रीअलॉग फंक्शन। ये रीअलॉग फंक्शन क्या करता है, ये दो पैरामीटर्स लेता है। पहली बात, जिस भी पॉइंटर की वैल्यू को आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, ठीक है, उस पॉइंटर को लेगा। और सेकेंड, कि कितने साइज से आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है वो लेगा। तो देखिए कैसे काम करता है। तो इनिशियली मैंने क्या करा, मैलॉक फंक्शन यूज करा और मैंने पहले यूजर से मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यूज डिक्लेयर करी। एक तो पॉइंटर डिक्लेयर करा पीटीआर, एक आई वेरिएबल लिया लूप्स के लिए, n1 लिया मैंने इनिशियल साइज के लिए, n2 लिया मैंने जब मैंने साइज को ऑल्टर करना है। तो मैंने यूजर से वैल्यू मांगी एंटर साइज, ठीक है, तो जो भी यूजर ने वैल्यू डाली वो किस में आ गई, एड्रेस ऑफ n1, यानी कि n1 नाम के वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू आ गई। तो लेट्स से कि यूजर ने डाला 2 और मैंने क्या करा, मैलॉक फंक्शन के थ्रू एक पीटीआर नाम के पॉइंटर को उसको मैंने मेमोरी असाइन कर दी। अब क्योंकि साइज जो था वो सिर्फ 2 था, तो आपके बेसिकली दो इंटीजर एलिमेंट्स के लिए मैलॉक ने रिजर्व कर दिया स्पेस। नाउ अब मैंने अपनी फॉर लूप यूज करी और मैं क्या यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ मैं डायरेक्टली पॉइंटर जो है, मतलब जो उनका एड्रेस है वो एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, चेक करिए, इनिशियली आई की वैल्यू है 0, n1 की वैल्यू थी 2, तो कंडीशन ट्रू है। तो हम अपने लूप में आए, वो क्या प्रिंट कर रहा है, %u, मतलब अनसाइंड इंटीजर टाइप की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं। ptr प्लस आई की वैल्यू 0, तो ptr के अंदर क्या था, बेस एड्रेस था जो आपको पहला एड्रेस एलोकेट हुआ था मेमोरी से मैलॉक फंक्शन के थ्रू,
तो उसने वो एड्रेस जो था वो प्रिंट कर दिया विच इज़ 1534832। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स ले रहा है। उसके बाद हमने i को इंक्रीमेंट करा बाय 1। ठीक है जी, तो n1 की वैल्यू थी 2, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। दोबारा हम यहाँ पे आए, हम अनसाइंड इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ptr प्लस i की वैल्यू है 1। 1 होने का मतलब क्योंकि आपका इंटीजर मेमोरी में 4 बाइट्स ले रहा था, तो वो 1 इंटू 4 यानी ptr की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा बाय 4, और वो वैल्यू हमें प्रिंट करेगा विच इज 1534836, जो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, हमने यूज़र को कहा कि आप नया साइज एंटर करो, और यूज़र ने जो भी वैल्यू डाली वो हमने डाल दी n2 में। और उसके बाद हमने क्या करा जी, हमने रीअलॉक फंक्शन यूज़ करा। तो रीअलॉक फंक्शन में जैसा आपको मैंने बताया था, हम दो पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। पहला ptr जिसको हमने वैल्यू एलोकेट करनी है, और उसके बाद साइज कितना उसका। तो ये आप चेक करो, साइज ऑफ इंटीजर यहाँ पे रिटर्न कर रहा है आपको 4 बाइट्स, और उसको मैंने n2 से मल्टीप्लाई करा। n2 की वैल्यू थी 4, सो 4 इंटू 4 मतलब 16 बाइट्स आपके एलोकेट हो जाएंगी। अब पहले आपको 8 बाइट्स एलोकेट थे, अब 16 बाइट एलोकेट हो जाएंगी किसको, ptr नाम के पॉइंटर को। और फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम वो सारी एड्रेसेस जो हैं वो दोबारा से प्रिंट करवा रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि इसमें दो एड्रेस तो पिछले वाले ही हैं, क्योंकि पिछले वाले भी तो एज इट इज रिजर्व रहेंगे, प्लस आगे दो एड्रेसेस और आ रहे हैं, और सब एड्रेसेस के अंदर 4 बाइट्स का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका इंटीजर जो है वो कितना स्पेस ले रहा है, यहाँ पे ये ले रहा है 4 बाइट्स। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ योर री अलॉक फंक्शन you can either increase or you can decrease the size of any allocated pointer at any given instant. लास्ट वन, फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन आपने सब में देखा ही है कि फ्री फंक्शन आपका क्या करेगा कि जब भी हमने मेमोरी को यूज़ कर लिया और अब हम अपना प्रोग्राम जो है वो क्लोज करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, फ्री फंक्शन यूज़ करते हैं, और जो भी मेमोरी है हमारी वो हम रिटर्न कर देते हैं हीप को। तो आपको ये समझना है कि ऑल दो गार्बेज कलेक्टर आपका ऑटोमेटिकली काम करता है, लेकिन कैलॉग और मैलॉग ऑटोमेटिकली स्पेस उसको फ्री नहीं करते मेमोरी को। तो उसको फ्री कराने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा फ्री फंक्शन। तो ये एक्सप्लिसिटली यूज़ होता है और स्पेस को फ्री कर देता है। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बहुत ज़रूरी है, खास करके जब हम बात करेंगे आपके डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर्स की, जैसे लिंक लिस्ट आएगा आपको, तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का बहुत एडवांटेज होगा। सो आई होप दैट यू गाइज लर्न समथिंग। सो गाइज कीप लर्निंग, स्टे safe and stay at home. Thank you very much.